nylon 6. ठीक है, this is another it's a polymer, it's a biodegradable polymer. So it's made of glycine and aminocaproic acid. So can you try to write down its repeating unit by joining glycine and aminocaproic acid? And I guess अभी तक तुमको पता होगा इसको nylon 2 nylon 6 क्यों बोल रहे हैं. Anybody would like to take a dig on that? Soge, good morning. Am I connected? हाँ सर, क्या हुआ? हाँ, yes, very good. जग रहे. तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 इसका नाम है. अभी हमने नाइलॉन 6 देखा, हमने नाइलॉन 6 देखा, अब हम नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 देख रहे हैं. Anybody would like to take a guess that why its name is nylon 2 and 6 over here? These are the building units of nylon 2 nylon 6, glycine and aminocaproic acid. Number of carbon atoms present. Very good, very good. In the number of carbon atoms present in its building block, ग्लाइसिन में 2 है और अमीनो कैप्रोइक एसिड में 6 है. 6. ठीक है, वेरी गुड बेटा. चलो, here they are forming an amide linkage by condensation like shown over here. But at least minimum 2 biodegradable polymers याद रखना ना बेटा प्लीज, जो इजी है पढ़े आपको. वैसे I know there are many structures in this, but regular practice can help you with that. So if you all have written this, I can go ahead. I really don't know how many of you all are awake and actually listening to me. I'm just asking if anybody is awake. डन गाइस. अमाइड लिंकेज दिख रहा है. पहले वाले में कौन सा था? वो पीएचबीवी में कौन सा लिंकेज था बेटा? एस्टर लिंकेज था. नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 में कौन सा लिंकेज दिख रहा है हमको? हमाइड लिंकेज दिख रहा है. सर रुको 2 मिनट. रुकेगा बेटा. अगेन इसका नाम इसलिए है 2 carbon atom and 6 carbon atom, that's why nylon 2 nylon 6. Yes sir, thank you. Yeah. Another example of degradable polymer is your polycaprolactone PCl. Polycaprolactone PCl. Again, this polycaprolactone is used for medical sutures, drug delivery, and the manufacture of special polyurethanes. So this polymer can be blended with other polymers. इसको दूसरे polymers के साथ mix करके हम लोग और applications को डाल सकते हैं, उसका strength increase करके. And the best part is it is biodegradable. There is another biodegradable polymer called as PLA, polylactic acid. इसमें से काफी आपके पोर्शन में मतलब 12th में नहीं है, but keep reading about it. Polylactic acid. This is again a degradable polymer. इसका starting material is a plant base. Plant base मतलब या तो it's cornstarch और sugar cane या cornstarch इससे start करते हैं ये polymer बनाना. तो obviously इसका starting material ही natural है, तो it is definitely going to give us a biodegradable polymer. Look, this is the process. Lactic acid polymerized to give you your lactide monomer. Then this lactide monomer, it undergoes open ring or ring open polymerization to give you polyactic acid. This is your polymer.
I'm taking the pauses because I'm expecting some people to note. तो वो रिंग ओपन पॉलिमराइजेशन जो हमने बात की थी, इट इज लाइक दिस, ठीक है. क्लोज्ड रिंग मोनोमेरिक यूनिट रहेगा which simply opens and keeps on adding. So that is your ring open polymerization. ये देखो इसका uses पैकेजिंग के लिए. So its uses for this containers जो रहता है, but only for cold beverages. Very hot temperatures में वो पिघल जाता है. Again उसका अलग अलग uses are in fibers for clothing, sutures and stents. So there is problem इसका ये है कि the required to break it is क्या बोलते हैं very costly. तो इसको मतलब डिग्रेड करने के लिए एंड देन अगेन रीयूज वगैरह करने के लिए तो यू नीड कमर्शियल फैसिलिटीज. इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर यू हैव टू ब्रेक एंड ऑल. But as compared to PET is easier and cheaper as compared to PLA. ठीक है. So these are the better uses of biodegradable polymers कि भाई वो pollution नहीं फैला रहे. जो ill effects थे plastics के वो इसके plus points हो जाएंगे because they do not do all those things. ये clutter नहीं, environmental pollution नहीं, सर्जरी वगैरह में यूज होता है जिसको फिर से सर्जरी कर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड ऑल दोस. सो दीज आर सम ऑफ योर कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स. ठीक है. तो ये जो आपको स्क्रीन पे नाम्स दिख रहे हैं, अगर आपने इतने भी पॉलीमर्स याद रख लिए बेटा, इट विल बी गुड इनफ फॉर यू टू फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Polycarbonates, polyvinyl chloride, glyptal, polypropene, polystyrene, urea formaldehyde polymer, bakelite, and polyurethanes. So these are commercially important बोले तो ये they are produced for business purposes. लिख लिया आपने? रुको सर. मैं रुकूंगा. कार्तिक मेसेज अभी देखा. कार्तिक कोणता पेज बघायचा आहे? कार्तिक कार्तिक are you there? Done? People? Yes. Okay. लास्ट टू लास्ट एक पीछे से तीन स्लाइड. टॉपिक का नाम बता. ये वीडियो है, स्लाइड ना है. बोलना. दिस वन, दिस वन, दिस वन. हाँ सर, रुको.
So with this, polymers is, this is all you need to study in polymers and need to remember in polymers. इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है polymers में. होगा चैप्टर हो गया. Yeah, बेटा, chapter is done. सर आप इम्पोर्टेंट दोगे, आप बोले थे. क्या बोला था? बोले थे कुछ इम्पोर्टेंस का. हाँ, तो मैंने लास्ट में जो स्क्रीन दिखाई वो था ना इम्पोर्टेंस. अरे नहीं सर, अलग से. और अरे अलग से क्या होता है? डिफरेंट. थोड़ा ऐसा अलग इम्पोर्टेंट. और भाई अलग इम्पोर्टेंट क्या होता है भाई? कंक्लूजन. तो वो जो मैंने आपको दिखाए थे ना बेटा, क्या बोलते हैं, लिस्ट ऑफ कमर्शियली इम्पोर्टेंट पॉलिमर्स, हाँ. वो कर लेना. उतने पॉलिमर्स में कर लियो, हो जाएंगे. आगे तो बस उसका रिवीजन ही है. तो बताई थी ना बेटा, ये वाला सर. हाँ, जे वाली लिस्ट. यू रिमेम्बर गाइस, हमने डी ब्लॉक किया था, हमने डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर किया था, यू रिमेम्बर? Yes, sir. हाँ, तो उस डी एंड एफ ब्लॉक में ना बेटा, देयर वाज अ पार्ट व्हिच आई स्किप्ड, एंड द पार्ट वाज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, मेटलर्जी. Hmm. मेटलर्जी का एक पार्ट था दैट वी हैड स्किप्ड. नाउ I had skipped that part owing to that you have studied that in your 10th standard. You remember 10th standard में हमने metallurgy किया था. हाँ सर. हाँ, तो वो exactly वही part है 10th standard वाला, जो iron का extraction वाला part है. So what is metallurgy? Hello? So what is metallurgy, I'm asking? Metallurgy is a science. Metallurgy is a science of extraction of metals, right? From ore. क्या बोल रहे हो बेटा? Am I connected? Like I cannot hear you. Is there a problem on my end or something? Is anyone talking or like no one is talking? So you remember how we have studied that elements are present in two states, free state and combined state. In the combined state, in the Earth's crust, they are found in the form of minerals. Now, mineral is nothing but it is like copper sulfate हो गया, zinc sulfide हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया. तो ये ऐसे मिनरल के फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है. अब अर्थ के क्रस्ट में ये पाया जाता है, तो इससे हम लोग उसको बाहर निकालेंगे माइनिंग करके, और फिर उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे इन क्या बोलते हैं, प्लांट्स, इन फैक्ट्रीज, एंड देन यू विल एक्सट्रैक्ट द एक्चुअल मेटल आउट ऑफ इट. अभी ऐसे तो बहुत सारे मिनरल्स रहेंगे, बट जिस मिनरल में से मेरे को ज्यादा क्वांटिटी का मेटल मिलेगा उसको मैं सिलेक्ट करूंगा एक्सट्रैक्शन के लिए. तो ऐसा मिनरल जिसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मेटल होता है उसको हम लोग ओर बोलते हैं. And that is why we say that all ores are minerals, but all minerals are not ores. कुछ याद आ रहा है बेटा? ऐसा हमने किया था 10th में, है ना? Yes, sir. There are different steps involved in the extraction of metals, concentration of ore, then roasting, then reduction, then refining, है ना? हाँ Yes, सर. sir. हाँ, तो बस वही सब है बेटा. अभी यहाँ पे आपको दिया है हेमेटाइट से हम लोग कैसे आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन करेंगे. मेरा आवाज बिकॉज़ आई एम मूविंग द कर्सर फॉर मी.
सर स्क्रीन गायब हो गया। क्योंकि मैंने स्टॉप शेयर किया है इसलिए। ओके। आवाज आ रही है मेरी? बिकॉज आई एम मूविंग द कर्सर। इज माय वॉइस ब्रेकिंग? हाँ सर, थोड़ा कम ज्यादा हो रहा Because I'm moving the cursor. I hope my voice is not breaking much. है। यस सर। अच्छा, just hold on. I'm opening up. अरे हैंग हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हमको इसने बताया है कि कैसे हेमेटाइट से, हेमेटाइट ओर होती है उसकी, मतलब आयरन ऑक्साइड ही होता है वो, उस ओर से हम लोग कैसे अपने आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। Are you there, Balaji? I think we had discussed this. Balaji, Balaji absent है आज? है? हेलो सर। ओम, सर अब भी आपका आवाज आया। क्या हो रही थी आवाज की? नहीं सर, मेरे को कब से नहीं आ रहा है। आपने लास्ट बोला ना कि वो, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन, इतना बोला, उसके बाद कुछ आ ही नहीं रहा है। तो आपने पता नहीं सर क्या? नहीं सर, मेरा माइक ही नहीं ऑन हो रहा है। अब भी देखो जाके हुआ, कब से ट्राई कर रहा था। फोन हैंग हो रहा है। आईफोन है नहीं नहीं सर, फोन नहीं हैंग हो रहा है। ये पता नहीं क्यों नेटवर्क कुछ इशू है जूम का सर। ऐसा एक बार और हुआ था। Zoom. हाँ, जूम का प्रॉब्लम है कुछ। Zoom, hydro and electro. Why I'm doing this on a ongoing basis is because this is just a revision of what you had done in your 10th standard. Mineral or all those things. ओम, तो हमने यही डिस्कस किया था बेटा कि 10th में हम लोग ने ये ऑलरेडी कर चुके हैं। गैंगू। क्या बेटा? हाँ, गैंगू। इफ यू रिमेम्बर, इट्स नॉट कॉल्ड एज गैंगू, इट्स कॉल्ड एज गैंग। ठीक है, GANGUE। तो वो गैंग होता है, स्लैग होता है, ठीक है, वही सब वर्ड्स इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। सो pyrometallurgy is that metallurgy in which heat is used for extraction of metals, heat energy, ठीक है। Then using high temperatures, hydrometallurgy में you are having aqueous solutions of the salts which are helping in the extraction of the metals, and electrometallurgy obviously electrolysis of the fused salt we are using. What is the difference between fused and aqueous, beta? Anybody is aware of the difference between fused and aqueous? एक्वस तो वही अपना एक्वस मतलब लिक्विड। एक्वस मतलब पानी में डिसॉल्व है। वेरी गुड रजक, वाओ मैन, दिल जीत लिया तुमने। मतलब एक्वस मतलब पानी में डिसॉल्व। वेरी गुड। एक्वस मींस मिक्स्ड विद वाटर सॉल्यूशन। एंड व्हाट डज फ्यूज्ड मीन बेटा? सर फ्यूज मतलब वो मोल्टेन स्टेट में है बस। एक्सीलेंट, वेरी गुड बेटा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्वस एंड फ्यूज्ड। एक्वस मतलब वही सॉल्ट को अपन ने पानी में डिसॉल्व किया तो उसको एक्वस सॉल्यूशन हो गया, और वही सॉल्ट को अगर हम लोग डायरेक्टली हीट करके पिघलाएंगे तब उसका वो फ्यूज्ड स्टेट होगा। तो फ्यूज्ड NaCl एंड एक्वस NaCl में फर्क यही होता है। नमक को अगर आप पानी में मिलाओगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl हो जाएगा, और उस नमक को आप डायरेक्टली तवे पे हीट करोगे और वो मेल्ट होगा तो दैट इज गोइंग टू बी फ्यूज्ड NaCl और मोल्टन NaCl। ठीक है बेटा? अच्छा, अब आप यहां देखें the different steps involved in the extraction of iron. तो when I talk about iron को उसके और हेमेटाइट से हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन यूजिंग हाइड्रोलिक क्लासिफायर। I don't know how many of you know what is a hydraulic classifier. हाइड्रोलिक क्लासिफायर में मतलब क्या रहता है बेटा? एक बहुत बड़ा ऐसा टाकी टाइप्स रहता है। अपन ना पाउडर्ड ओर को ऊपर से डालते हैं और नीचे से पानी का फव्वारा छोड़ते हैं। जो मिट्टी होती है, ठीक है, जो डर्ट होता है, that dirt gets washed away with water because it is light, and the ore which is heavier it falls at the bottom. तो बॉटम में अपन क्लीन ओर कलेक्ट कर लेते हैं और पानी के फोर्स के साथ हल्की मिट्टी ऊपर से बाहर निकाल दी जाती है। याद आ रहा है? ये 10th में किया था। हाँ सर, 10th में था ये भी। हाँ जी, बिल्कुल था बेटा। Then you have a roasting. Roasting is simply
हीटिंग योर ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट करना, तो इट इज एज गुड एज ऑक्सीडेशन। तो आयरन ओर, हेमेटाइट जो मेरा ओर होता है ना, उसके अंदर सिर्फ Fe2O3 नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारा दूसरा इम्प्योरिटीज भी होता है। उसके अंदर मिट्टी होता है, उसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, उसके अंदर जिंक सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड FeO होता है उसके अंदर। तो ये सब इम्प्योरिटीज होता है। तो हम लोग को ये सब इम्प्योरिटीज से उसको अलग करके प्रोसेस फिर उसका रिडक्शन करना है। हाँ बेटा, प्रोसेस करना पड़ता है। हाँ प्रोसेस करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो उसके अंदर जो थोड़ा बहुत ट्रेसेस ऑफ FeO रहेगा, वो रोस्टिंग करने के बाद Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज मोर गुड बिकॉज मेरे को और आयरन मिलेगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आयरन तो मतलब क्या है वो, इट्स नॉट और आयरन, इट्स जस्ट इसका रिडक्शन होता है बेटा ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस ह्यूज मशीन, इट्स ह्यूज। देखा है आपने कभी भट्टी सुना है? भट्टी करके जैसा कुछ होता है। नहीं सुनाई दिया, क्या बोले? सवीड भट्टी ना? हाँ, ईंट का भट्टी होता है। वेरी गुड, यस। दिस इज योर ब्लास्ट फर्नेस। दिस इज योर ब्लास्ट फर्नेस बेटा। इसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं। ये बहुत ही लंबा और चौड़ा टावर होता है, and around 25 meters in height and 5 to 10 meters in your क्या बोलते हैं उसको, diameter नीचे से, ठीक है। तो दिस इज ये जो आपको अब मैं कर्सर मूव करूंगा तो आप लोग को आवाज नहीं आएगा। ये दिख रहा है, ये कर्सर मूव किया अभी। हाँ, ये टायर्स है बेटा, TUIERES, ये टायर्स है। यहाँ पे ना बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बलून लाइक ह्यूज स्ट्रक्चर होता है जो हॉट एयर को अंदर पास करते हैं। अभी मैं हॉट एयर बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल हॉट एयर नहीं है। दैट एयर का टेम्परेचर कैन बी अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर जाता है। तो जो मेरा टेम्परेचर रहता है, ठीक है, आई डू वन थिंग, मैं ना मोबाइल से लॉग इन करता हूँ ताकि मैं मूव कर सकूं कर्सर को, हाँ एंड सर। आपको मैं बता Yes, सकूं sir, कि क्या है। yes. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट Yes, होल्ड sir. ऑन, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। Yeah. ठीक है, ये एकदम ह्यूज टावर होता है, 25 मीटर इन हाइट and 5 to 10 meters in diameter. This way. Just look at the cursor. This is what is the entry for tires. Tires are huge circular objects. I don't know. Have you seen Tom and Jerry? Yes. हाँ, टॉम Yes, एंड sir. जेरी में वो ब्लैकस्मिथ वाला एक एपिसोड है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, ऐसे हवा भरते हैं वो आग को बढ़ाने के लिए। सो देयर इज अ फैन लाइक device which gives in air for the fire to rise more. I don't know, have you seen it? Forget about Tom and Jerry. Normal application में पता है ऐसा होता है कुछ। चूल्हा देखा है सबने? चूल्हा, हाँ चूल्हे को आग लगाने के लिए और आग तेज करने के लिए ना ऐसे एक फूकनी होती है, फूकने या उसमें से हवा हम लोग पास करते हैं ताकि फूकते। उसको क्या बोलते हैं, एयर मिले और एयर से ये आग और बढ़े। ठीक है, हाँ तो सर। यहाँ पे क्या होता है, वैसा ही एक ह्यूज बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है दोनों बाजू में, ऐसा गोल, और उससे ना बहुत ही हॉट एयर इज पास इनसाइड दिस टावर। नाउ व्हेन आई से हॉट एयर, इट इज वेरी हॉट, इट इज अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस ऐसा। तो जो टेम्परेचर विच इज हियर अराउंड द टायर्स, इट इज ऑलवेज हाई, ये टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा। अब जो एयर अंदर गया है, वो एयर ऊपर जाते 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 कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड इन द सेंस टेम्परेचर कम होगा। So as compared to the temperature over here, temperature on the top of the blast furnace is always low. Yes. So charge होता है। Now when I say charge is your ore. ore के साथ हम लोग कोक डालते हैं और लाइमस्टोन डालते हैं। कोक बोले तो कार्बन, एंड लाइमस्टोन वी पुट कैल्शियम कार्बोनेट। ये हम क्यों डाल रहे हैं? कोक वी आर एडिंग फॉर रिडक्शन, वो हमको रिडक्शन में हेल्प करेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट हमको हेल्प करेगा इम्प्योरिटीज निकालने के लिए, गैंग एंड स्लैग निकालने के लिए, उसके साथ कंबाइन करके वो निकाले। ठीक है, अच्छा। सर, हाँ बेटा, सर बोलो। मैंने
ये चैट बॉक्स पे भेजा सर। ब्लास्ट फर्नेस इज अ टाइप ऑफ मेटलर्जिकल फर्नेस यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग टू प्रोड्यूस, मतलब क्या है? हाँ, smelting. The process which I am explaining you, using high temperature to extract the metal. हेलो सर, आए, आवाज आई? हाँ सर। बोल रहा हूँ using high temperature to extract the metals. स्मेल्टिंग बोलते हैं How? सर। ये ठीक है? पिग आयरन क्यों बोला है? पिग आयरन इसलिए बोल रहा है कि वो रॉ फॉर्म ऑफ आयरन है। जो आयरन हम लोग जिस मोल्ड्स में कलेक्ट करते हैं ना, उनको पिग हाँ। नाम दिया जाता है। एक तो ये रॉ Pig. आयरन है, 93% आयरन होता है इसके अंदर। हम लोग इसको 99% प्योरिटी तक लेके जा सकते हैं। ठीक है? तो रॉ जो भी रहेगा पिग हम लोग भी बोल सकते हैं ना? सबको नहीं, आयरन को बोला जाता है, बिकॉज आयरन को जिन कंटेनर्स में कनेक्ट होता है वो कंटेनर्स को पिग कंटेनर्स बोलते हैं। ठीक है? अच्छा। सर पिग क्यों है? भाई बोलते होंगे यार, सुअर खाते होंगे उसमें, पता नहीं क्या है। ठीक है? Okay, so there are different zones, there are different temperatures. जो ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट, यहाँ से ना we put in the charge बोले तो the mixture of my ore, coke and calcium Lime. carbonate, limestone. तो ये हम लोग यहाँ से नीचे डालते हैं, तो ऊपर से processes होता आता है। Let us see the different processes. आ जाओ, जोन ऑफ कंबशन क्या होता है एंड ऑल। सो आपको अलग से अगर क्वेश्चन आया कि भाई राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द ब्लास्ट फर्नेस, तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट जोन्स लिखना है। तो लुक एट दिस, द जोन ऑफ कंबशन, इट इज 5 to 10 meters फ्रॉम द बॉटम, मतलब इट इज वेरी क्लोज टू द टायर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैंने कोक ऐड किया था, कोक बोले तो कार्बन, this carbon is getting oxidized to carbon monoxide. Okay, and some of the carbon monoxide again breaks down to coke. So both coke and carbon monoxide, both are your reducing agents. ये दोनों ही अपने को, मेरा जो आयरन ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है? देन ऊपर जाकर के होता है योर जोन ऑफ रिडक्शन। दिस इज वेयर योर एक्चुअल आयरन इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड। जो कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट विल रिएक्ट विथ योर आयरन ऑक्साइड ओवर हियर टू गिव मी आयरन। द बाय प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी जो इसका बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कैन एक्चुअली बी रीयूज्ड in the same blast furnace. ये carbon dioxide and carbon monoxide, they are used for preheating the air in the tires. तो इसका reuse हो जाता है। They are gases which increase temperature. ठीक है? अभी देखो, at 1200 degree Celsius, your calcium carbonate जो हमने ऐड किया था, lime, वो कैल्शियम कार्बोनेट will degrade, will disintegrate, will break into calcium oxide and carbon dioxide again. So this calcium oxide, it combines with silica, sand, and forms calcium silicate, and also it combines with aluminium oxide to give you calcium aluminate. Both of these are removed as slag. These are called your gang. Gang is your waste material. This is removed as slag. Now slag is lighter, तो वो निकला जाता है थोड़ा ऊपर से, and your metal which is extracted, your iron, molten iron is heavier, तो वो नीचे से निकाला जाता है। When I say ऊपर and नीचे, I'll show you. यहाँ से your slag will be removed and यहाँ से your metal will be removed, ऐसा। फिर ये जो पिग आयरन मेरे को मिला है, I can apply various methods to क्या बोलते हैं, purify it and obtain up to 99% pure iron. Now depending on the purity, उसका applications होता है, उसका pricing होता है, and so on. ऐसा अभी अलग अलग application में अलग अलग purity of iron लगता है। Now depending what are you making out of that iron, how much you want it to be durable, and what your
what सर are the properties you're preferring for it? ऐसा. सर हाँ भाई, ये टायर्स क्या होता है? टायर्स क्या हो? MRF का नहीं, nonsense. Not tires. Hold on. C8 Just give me 2 seconds. रुको हाँ बेटा. हाँ सर क्या था रे ये? टायर्स टायर्स. टायर ब्लास्ट फर्नेस. वी टॉकिंग अबाउट ब्लास्ट. ये 10th में किया है ना लेकिन अपन. नहीं सर, टायर वायर कुछ भी नहीं था 10th में। रो भाई, नहीं था ये. ब्लास्ट फर्नेस नहीं था. नहीं सर, नहीं नहीं। ठीक. और पिग आयरन भी नहीं। पिग आयरन. हाँ, अब भी सुना। कोई बात नहीं। क्या नहीं. मल्टीगिरी. Just give me a second and I'll start the screen sharing again. Your ore, limestone, coke, all mixed together. इसको हम लोग ऐसे टॉप से इसके अंदर डालते हैं. ठीक है. तो कोक डाला, लाइमस्टोन डाला और अपना ओर डाला. ये देखो, हॉट एयर. दिस इज व्हाट आई वाज रेफरिंग टू एज अ टायर. ये दिख रहा है, वो देखो दबा रहा है. ये देखो. हाँ हाँ सर, गॉट इट? गॉट आइडिया ऑफ इट? हाँ सर तो यहाँ से एकदम हॉट एयर इज गोइंग इनसाइड. भट्टी टाइप से रहे. इसका जो ये ब्रिक्स दिख रहा है, इनर लाइनिंग ब्रिक्स, दे आर कॉल्ड एज योर refractory bricks. These bricks I'm talking about, they are called as refractory bricks. Refractory bricks are those bricks which are resistant to very high temperature. ये घर की दीवारों को जो bricks होता है, they are not that resistant. These bricks are resistant to 2000 degrees Celsius, 5000 degrees Celsius ऐसा. Okay. तो दिस कोक बर्निंग इन द सेंस ऑक्सीडेशन होता है उसका, जो हमने अभी डिस्कस किया है. कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज ब्रेक्स इनटू. ये देखो ऐसा मस्त हीट गया अंदर. एंड दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इसने मेरे को रिड्यूस किया. किसको? आयरन ओर को. ठीक है. मेरा जो ओर आ रहा है वो ऊपर से आ रहा है. ठीक है. ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था, इट ब्रेकिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड मिक्सिंग विद सिलिका टू फॉर्म स्लैग. स्लैग भी मोल्टन होता है बिकॉज द टेम्परेचर इतना हाई होता है. ठीक है. ऐसे वो बाहर निकाल दिया. चल, व्हाट एन आइडिया ऑफ इट बेटा? यस सर यस सर। अच्छा. बाकी तो the are the reactions which we have already done. ये reactions are इम्प्योरिटी है ना? क्या बेटा? स्लैग इम्प्योरिटी है ना? Slag impurity. बिल्कुल. Yes, it is impurity. चलेगा। ठीक है. यस अच्छा. So this is what I was talking about, your slag and your extraction of iron. ये कौन से चैप्टर का है? ये बेटा है DNF ब्लॉक का एक पार्ट है. तो मैंने बताया था स्टार्टिंग. हाँ सर, उसमें तभी सुना है। ठीक है, नहीं तो कभी सुनेगा रे. अरे अभी बताया था, मतलब अभी इस लेक्चर में बताया था कि हम लोग ये पढ़ने वाले हैं DNF ब्लॉक में. वाला जी होशियारी. ओके गाइस.
हाँ सर। अच्छा अच्छा, क्या बोले सर? मैं बोल हो रहा हूँ गया। कि हाँ, तो पॉलीमर्स में उतना था। ये एक एक्सट्रैक्शन वाला जो पार्ट था, इट वाज देयर फ्रॉम योर डीएनए ब्लॉक। आई होप यू ऑल हैव स्टार्टेड स्टडीइंग। हाँ हाँ, सो hold on. ये नैनो केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री हो गया? नैनो? एक सर, नैनो केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री हो गया तुम लोग का? नहीं, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं पड़ा है। ऐसा देखा कुछ भी भी नहीं, नहीं। क्या बोल रहा है देखा भी नहीं ऐसा कुछ। पूरा भाई? नया चैप्टर है, नया पोर्शन, वो बोल। नहीं नहीं, नैनो, चालू नहीं हुआ। छोटा नहीं, केमिस्ट्री। क्या है सर उसमें? अरे छोटा इट्स है वेरी केमिस्ट्री। बेसिक थिंग, वेरी बेसिक। So let us revise the important polymers. ठीक हाँ है? सर, एक बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। I will speak less. You look at it more because almost हमने वो सब किया हुआ है। ये देखो, polycarbonates, thermoplastic polymers held together by strong bonds. ठीक है? The most common polycarbonate, bisphenol is a diphenol. Carbonic acid is giving me polycarbonate of bisphenol A. I don't want to confuse you, but this is just for your information. इतना डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना सर है। ऐसा एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा नहीं, इतना बड़ा? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये, इट्स ओनली फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ। हम्म, लुक एट द एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीकार्बोनेट्स, आपके सामने दिख रहा है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है, तो ऐसा बॉटल बिटर बनाते हैं, जिसको गिराए तो टूटता बिटता नहीं। प्लास्टिक है ना? Yeah, you can consider it as a type of plastic. हमको तो बॉटल दिखता है तो प्लास्टिक ही बोलते हैं उसको। प्लास्टिक तो है। तो उसका ही Spectacle तो रहता है ना lenses, फिर। compact discs, bottles, shutterproof windows, इतना सब एप्लीकेशंस होता है, हम लोग प्लास्टिक पे अटके हुए हैं। अगेन पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमने किया हुआ है। फ्री रेडिकल पॉलिमराइजेशन, जस्ट अ रिवीजन बेटा, ये हम लोग ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं। ये देखो, पीवीसी इज रेजिस्टेंट टू वाटर एंड फायर, बेस्ट वाल, दैट्स व्हाई इसको पाइप्स में यूज होता है। ये देखो, शावर कर्टन्स, रेन कोट्स, पाइप्स फॉर प्लम्बिंग। सर वो पीवीसी का, क्या बोल रहे हो बेटा? पीवीसी का। हाँ, पीवीसी, ये पीवीसी का एप्लीकेशन। ग्लिप्टिल, इसका दूसरा नाम है अल्काइड। It's a condensation polymer which is formed from phthalic acid and glycerol. मस्त ना? ये लिख लो, ये लिख लो, लिख लिया? डन? हाँ सर। हम्म, ग्लिप्टिल इज अ पॉलिएस्टर जो क्रॉस लिंक्स फॉर्म कर सकता है। तो क्रॉस लिंक्ड है तो थर्मोसेटिक पॉलीमर है, हाँ सर। used in the manufacture of paints, resins, lacquers. सर इलेक्ट्रोस क्या है? ये लिक्विड होता है बेटा, इसको काय का सर?
we use it in different I'll have to exactly look up what is the use of it. ठीक है? और सर वो रेजिन्स का Resins and lacquer. Give me a moment. Lacquers देखता हूँ पहले. Then I'm curious about lacquers. So it's a liquid of shellac dissolved in alcohol or a synthetic that dries to form hard protective coating of iron. वो लैकर कोटिंग होता है जब वुडन फर्नीचर वगैरह बनाते हैं और मेटल के ऊपर कोटिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं लैकर को. ओके, कोटिंग फॉर मेटल्स. कोटिंग फॉर मेटल्स एंड वुडन फर्नीचर एंड ऑल. हाँ Okay. किसी का माइक ऑन है? पांडे पांडे. पांडे, डिस्टर्बेंस आ रहा है. रेजिन इज यूज्ड इन रेजिन ग्लूज एंड ऑल बेटा. तो ये चिपकाने के लिए भी काम आता है. पॉलीप्रोपीन, पीपी, these are the uses of polypropylene. Ropes, toys, कितना सारा यूजेस है इसका. बाप रे बाप. प्लास्टिक. पॉलीस्टाइरीन, होमोपॉलीमर ऑफ स्टाइरीन, ये कल भी कहता है. Ah. स्टाइरोफोम, कॉमन नेम. Look at the uses. Toys, radio television cabinets, plastic cups, packaging, Packing. and food containers. It is used as insulator. Important urea formaldehyde polymers. Applications उसका Unbreakable cup. how तो ऐसा किससे Bakelite. बनता है? Bakelite Scratch important है, आता है. इसको अच्छे से करना. तो ये हमने देख लिया है. Just the revision of going through the important polymers. साथ रीडिंग. It is used in game pieces का making. Polyurethane, urethane linkage. ये आई थिंक आपने नहीं लिखा है तो ये लिख लो. Diisocyanate and dihydroxy alcohol. तो ये क्या हो गया? ये कोपॉलीमर हो गया. ये लिख लेना. ये आई एम श्योर आपने नहीं लिखा है. एगो हाँ. हाँ सर. कैन यू No. तो polyurethanes का basic units are always diisocyanate and dihydroxy alcohol. Look at this. इस तरीके से उसका मोनोमेरिक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं. अरे भाई टूट गया. क्या हुआ बेटा? ये देख, ये उसका बिल्डिंग यूनिट्स. Yes, sir. बहुत सारा यूजेस होता है.
Foams, elastomers, fibers, they can be used as anything. Very versatile. Okay. सर इलास्टोमर्स बताओ क्या था वो? Elastomers बता दो ना बेटा, polymers which are stretchable. हाँ जैसा उसको तो हम elastomers कहते हैं. सर, शॉक अब्जॉर्बर्स. Shock absorbers are definitely advanced version of elastomers. Yes. ठीक है. हाँ सर, यस. So this is all about your polymers, which you need to know from your 12th point of view. Okay, guys. I hope you all have started studying. College वगैरह के lectures हो रहे हैं. यस सर. बन College जाते के lectures भी हो रहे हैं. हाँ बन सर. जाते हाँ Good, good. तो नहीं है. कौन है?